Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. Today we will discuss our antenna trainer OFTT 1599. We will have a demo session of this trainer. We will know how this trainer can work, how you can perform experiment on this trainer. OFEL Engineering Antenna Trainer OFTT 1599 is a student-friendly trainer kit for studying characteristics of different antennas. The trainer is designed so that students can take the readings and plot the polar plots themselves, thus understanding the subject thoroughly. They can even stop and repeat the readings in between if needed. All the antennas are made by highly conducting rods with chrome finish for long durability and mounted on glass epoxy PCB for easy mounting and dismounting. Areas of experimenting and study: polar plot and polarization of various antennas, wave modulation and demodulation, antenna gain, antenna beam width, antenna matching, SWR measurement, antenna radiation with distance. So here is the technical specification. The RF generator of OFTT 1599 can generate frequencies from 2200 to 2800 megahertz, that is 2.2 to 2.8 megahertz approximately, adjustable with level displays. Maximum peak power for this trainer is 5 dBm. We can also have a modulated frequency by modulating generator. The frequency is 1 kilohertz. If we want to see the that 1 kilohertz square wave in oscilloscope, we can see that. Then we have a directional coupler that shows us forward and reverse powers. We have microstrip lines with 4 maxima and minima. Antenna rotation is 0 to 360 and the resolution of that rotation is 1 degree of transmitter antenna. Power supply is of 220 volt and the power detector can have power range from 5 dBm to minus 45 dBm, and the interconnections are done using SMA coax cables. Here is the part list that comes with this antenna. This is the antenna description. I have gone through that description in physical demo. Later in this, you can see that in this video later, we have gone through all these topics. तो आज की जो लैब है वो इंशाल्लाह वो हम लोग परफॉर्म करेंगे एंटेना ट्रेनर OFTT 1599 पे. हमें इसका वीडियो डेमो आपको मिल जाएगा. वीडियो डेमो के अंदर काफ़ी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं, तो वीडियो डेमो से गो थ्रू करें. इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और इस ट्रेनर को यूज़ करते हुए आप कैसे डिफरेंट एंटेना कैरेक्टरिस्टिक्स, पोलर प्लॉट्स वगैरह प्लॉट कर सकते हैं. आइए तो डेमो की तरफ चलते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम. आज हम लोग फिजिकल सेशन परफॉर्म करेंगे. इससे पहले हम लोगों ने डिजाइनिंग के एक्सपेरिमेंट किए. डिजाइनिंग के हमने अच्छे खासे एक्सपेरिमेंट कर लिए. ऑलमोस्ट 11 जो आपकी लैब थी वो जस्ट एंटेना डिजाइनिंग पे थी. अब एंटेना डिजाइन करने के बाद हमारे पास कुछ प्रोसीजर्स होते हैं. सबसे पहले उसका नेटवर्क एनालिसिस होता है. नेटवर्क एनालिसिस वही आपका स्पेक्ट्रम एनालाइजर के थ्रू और नेटवर्क एनालाइजर के थ्रू एस पैरामीटर्स और बैंड वगैरह देखते हैं. एस पैरामीटर्स आपको ये बता देते हैं कि आपका जो एंटेना है वो बेस्ट मैच फ्रीक्वेंसी कौन सी फ्रीक्वेंसी पे बेस्ट मैच है. ठीक है, वो हम लोगों ने जब एक HFSS में भी देखा था, तो हमारे पास कर्व बन रही होती थी. हम देखते थे कि सबसे बिलो या सबसे ज्यादा RSL लेवल जिसका हमें मिल रहा, हम कहते थे इस फ्रीक्वेंसी पे बेस्ट मैच है. जिसमें अगर मैंने कोई एंटीना 2.4 गीगाहर्ट्ज के लिए डिजाइन किया तो मैं 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ही उसको डिजाइन उसी हिसाब से मुझे एस पैरामीटर पे मैक्सिमम 2.4 पे मिलनी चाहिए. दूसरी चीज आ जाती है रेडिएशन टेस्ट. रेडिएशन पैटर्न टेस्ट आता है जो आपको डायरेक्टिविटी और गेन बताते हैं किसी भी एंटीना का. ये इस एंटीना की डायरेक्टिविटी कैसी है, इसकी गेन कैसी है, ये चीजें हम लोग
डिजाइन में तो पढ़ चुके हुए थे। आज हम देखेंगे कि हम कैसे एक एंटेना ट्रेनर को यूज करते हुए रेडिएशन टेस्ट कैसे उसका परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हमारे पास फॉरवर्ड पावर होगी, रिवर्स पावर की सेटिंग्स होती हैं, हमारे पास वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर वीसीओ के थ्रू भी हम मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं। मेरे पास जो लैब में ट्रेनर है वो है OFTT 1599 एंटेना ट्रेनर सिस्टम है। ये सिस्टम आपके पास 2.2 गीगाहर्ट्ज से लेके 2.8 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। ठीक है, वो वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर जो कि मैं आपको बताता हूँ कैसे हम फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास फिक्स 2.4 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी है। फ्रीक्वेंसीज के अलावा हम अपनी मर्जी का डेटा भी भेज सकते हैं, टोन डेटा जिसको हम कहते हैं, वो भी इसमें OFTT में मेरे पास मिल जाती है। इससे पहले जो हम OFTT से पहले हम यूज कर रहे थे वो था वॉट्स 2002, वो मैन एंड टेल का था। मैं आपको आखिर में वो इक्विपमेंट भी दिखा दूंगा। मैन एंड टेल वेव एंटेना ट्रेनिंग सिस्टम वॉट्स का था 2002 का मॉडल था। उसमें मेरे पास ट्रांसीवर मॉड्यूल था, यानी ट्रांसीवर ये ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के लिए एक ही बेस स्टेशन यूज हो रहा था, जबकि OFTT में ट्रांसमीटर स्टेशन और रिसीविंग स्टेशन अलग अलग है। तो और उसमें फिर हम सिर्फ पैटर्न टेस्ट परफॉर्म नहीं कर सकते, वॉट्स के अंदर हम वेव एंटीना, फेज डिले एक्सपेरिमेंट, VSWR, ये सारी चीजें भी हम उसमें मेजर कर सकते हैं। वो चूंकि 2002 मॉडल है, वो पुराना मॉडल है, वो सीरियल पोर्ट पे काम करता है। ठीक है, मैन एंड टेल जो है वो सीरियल पोर्ट पे आपके पास सिस्टम से कनेक्ट होता है, और आजकल जितने भी हमारे पास सिस्टम है वो USB पोर्ट पे आ गए हैं। तो इस वजह से हम USB पोर्ट्स के लिए हम लोगों ने फिर ये OFTT यूज किए हमारे सिस्टम के साथ। तो चलते हैं, देखते हैं कि कैसे इस पे हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आपको जैसे बताया था, मेरे पास दो मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, एक ये मेरे पास ट्रांसमीटर सेक्शन है। ठीक है, ये ट्रांसमीटर सेक्शन आपको नजर आ रहा है, और दूसरी तरफ मेरे पास रिसीवर सेक्शन है। ठीक है, ये मेरे पास रिसीवर सेक्शन आपको नजर आ रहा है कि दोनों स्टेशंस अलग अलग हैं। अब ये दोनों जो हमारे पास स्टेशंस हैं, ठीक है, एक के ऊपर आप ट्रांसमिटिंग लगाते हो, एक के ऊपर आप रिसीविंग सिस्टम, हम रिसीविंग एंटेना लगाएंगे, और जो ट्रांसमिटिंग एंड होता है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप मेजर करते हैं। ठीक है, जो ट्रांसमिटिंग एंड होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम मेजर करेंगे, उससे ही अंदाजा होगा कि हमारे पास रेडिएशन पैटर्न जो है वो ट्रांसमिटिंग एंड के हिसाब से आ रहा है। तो इसके साथ जो मेरे पास मैनुअल है वो हमारे पास अवेलेबल है। ये इसका मेरे पास मैनुअल पड़ा हुआ है, इसकी इंशाल्लाह सॉफ्ट फॉर्म में आपको दे दूंगा। तो इसमें जो हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं वो ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, पहले फंक्शनल चेक आ रहा होता है कि आपके पास सही परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद डायपोल एंटेना, ये सिंपल डायपोल है, फिर मॉड्यूलेशन टेस्ट के बाद हमारे पास फोल्डेड डायपोल, स्क्वायर लूप, सर्कुलर लूप, यागी, फेज अरे, ब्रॉड साइड अरे, कंबाइंड कोलिनियर अरे, 5 एलिमेंट लॉग पीरियोडिक एंटेना, रेक्टेंगुलर पैच, सर्कुलर रेक्टेंगुलर पैच अरे एंटेना, स्लॉट कपल्ड या स्लॉट एंटेना, उसके बाद फिर बोर्ड टाई है, फिर फ्रैक्चुअल पैच है, फिर λ/2 पैच एंटेना और λ/2 टैपर्ड मोनोपोल पैच एंटेना। तो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हम इस पर परफॉर्म कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में देख लें, स्टूडेंट फ्रेंडली ट्रेनर किट है। इसमें जो आपके पास एरियाज है वो पोलर प्लॉट, पोलराइजेशन है, वेव मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, एंटेना गेन, बीम विड्थ, एंटेना मैचिंग, SWR मेजरमेंट और एंटेना रेडिएशन रेजिस्टेंस है। SWR मेजरमेंट के फॉर्मूले हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़े हैं। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देख लें, जो मेरे पास RF जनरेटर है वो आपके पास 2200 से 2800 मेगाहर्ट्ज का आपके पास VCO है, RF जनरेटर है। मॉड्यूलेशन जनरेटर 1 किलोहर्ट्ज का है, इसमें हमारे पास डायरेक्शनल कपलर है, फॉरवर्ड और रिवर्स पावर का, माइक्रोस्ट्रिप लाइन विथ 4 मैक्सिमम एंड मिनिमम मैचिंग लाइंस हैं। ठीक है, जो एंटेना की रेजोल्यूशन है 0 to 360 डिग्री, वो 1 डिग्री ऑफ ट्रांसमीटर एंटेना रेजोल्यूशन जो है, इसका मतलब है कि 0 to 360 जो है वो 1 डिग्री, यानी 0 पे एक रीडिंग लेगा, एक 1 पे लेगा, एक 2 पे लेगा, इस तरह से 360 डिग्रीज आपके पास रीडिंग्स आएंगी।
पावर डिटेक्टर 5 dBm टू -45 dBm है, पावर सप्लाई 220 वोल्ट आ रहा है, और जो इंटरकनेक्शन है वो SMA कोएक्स केबल्स हैं। ये इसमें जो पार्ट्स हैं उस पर आपकी जो पार्ट्स अवेलेबल हैं इस ट्रेनर के वो आ रहे हैं। ये ट्रेनर डिस्क्रिप्शन आ जाती है उसके बाद, ठीक है। RF जनरेटर कैसे आपके पास जनरेट कर रहा है 2.2 से 2.8 गीगाहर्ट्ज का, ठीक है, 2.2 से 2.8 गीगाहर्ट्ज तक का आपके पास आ रहा है। उसके बाद इसका माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट है। तो ये मेरे पास आप देख रहे हैं, ठीक है, असेंबली इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, रिसीवर स्टेशन है, ठीक है। अब ये मेरे पास फर्स्ट आप देख रहे हैं रिसीवर रॉड है, सेकंड आपके पास रिसीवर बेस स्टेशन आ रहा है, थर्ड आपके पास रिसीवर पावर है, ऑन ऑफ स्विच है, RF इन है, और फिर डेटा सिलेक्टर या रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ RSSI आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये मेरे उसके डेटा पॉइंट्स आ जाते हैं, USB पोर्ट होती है फॉर ट्रांसमीटर इंटरफेस रिसीवर के अंदर। ट्रांसमीटर के अंदर आप देख लें यहाँ पे मेरे पास थोड़ी चीज़ें ज़्यादा हैं। ट्रांसमीटर रॉड है, ट्रांसमीटर बेस स्टेशन है, फॉरवर्ड रिवर्स पावर मीटर है, फॉरवर्ड और रिवर्स पावर सिलेक्टर स्विच है, ठीक है। उसके बाद आपके पास स्विच ऑन ऑफ है, RF आउट टू कनेक्टर है, और 1 किलोहर्ट्ज़ स्क्वायर वेव सोर्स है, और फिर कंप्यूटर इंटरफेस आ रही है, ठीक है। तो ये इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे बाकी चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा इसमें जो उस पिछले पेज पे दिया हुआ है, USB पोर्ट है, डायल है, ऑटो मैनुअल कंट्रोल स्विच है, RF स्विच है, V ट्यून है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये जो मेरे पास यहाँ पे जो पड़े हुए हैं इन इक्विपमेंट के ऊपर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ हैं। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, सॉफ्टवेयर इसके साथ आता है, इसके साथ इसकी CDs है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर इसका पड़ा हुआ है। हम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है, ये सारा मैनुअल मैं आपको सॉफ्ट फॉर्म में इसके वीडियो के साथ अपलोड कर दूंगा। उसके बाद जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आता है। इस सॉफ्टवेयर को भी हम चलाना सीखेंगे। सिर्फ हम लोगों को इधर रीसेट करके स्टार्ट कैप्चरिंग करना होता है। यहाँ पे आपके पास लिखा आ जाएगा कि कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, और ये जो बॉड रेट है ये ग्रीन हो जाता है। फिर ये कैप्चर करके आपको रेडिएशन पैटर्न बना के दे देता है, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन्स क्या होती हैं, फॉरवर्ड वेव, रिवर्स वेव, ये सारे थ्योरी में आप लोगों ने कवर अप की हुई है। ये टॉपिक आपके थ्योरी के SWR कैसे कैलकुलेट करनी है ये है, ठीक है। SWR अगर आप देख रहे हैं फॉरवर्ड प्लस रिवर्स पावर, ठीक है, स्विच टू मीटर टू रिवर्स, नोट फॉरवर्ड और रिवर्स में हम फॉरवर्ड और डिवाइडेड बाय फॉरवर्ड माइनस रिवर्स, और 100 प्लस रिवर्स डिवाइडेड बाय 100 माइनस रिवर्स, तो आपके पास SWR आ जाती है। सिग्नल वेव रेशियो से आप 1 माइनस, फिर हम VSWR भी निकाल सकते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंटेनाज आ रहे हैं, ओमनी डायरेक्शनल है, डायरेक्शनल है। जो ओमनी डायरेक्शनल है वो मोनोपोल्स, डायपोल्स वगैरह, और जो डायरेक्शनल आ रहे हैं पर्टिकुलरली डायरेक्शनल है वो यागीउड है, लॉग पीरियोडिक है, और हेलिकल है। इसमें आप लोगों को से बहुत सारे एंटेनाज आप लोगों ने डिज़ाइन भी किए हुए हैं। पोलर प्लॉट्स, ये रेडिएशन पैटर्न, इस तरह का रेडिएशन पैटर्न है, ठीक है। ये आपको ये बता रहा है कि इसकी डायरेक्टिविटी इस साइड पे है, इसकी बीम विड्थ आप जाती है आपके पास, बीम विड्थ आ जाती है। बीम विड्थ ये होती है जो मैक्सिमम आपके पास सिग्नल रिसीव स्ट्रेंथ होती है, उससे -3 dB आप पॉइंट करते हो एक साइड का, और दोनों साइड के पास जो आपके पास -3 dB पॉइंट्स आ जाते हैं उनके बीच के एंगल को आप बीम विड्थ का नाम देते हैं, ठीक है। उनके बीच के एंगल को हम बीम विड्थ कहते हैं। तो ये बीम विड्थ इस तरह से आ जाती है। ये बीम विड्थ, डायरेक्टिविटी, गेन, ये सारी चीज़ें आपको इससे रेडिएशन टेस्ट से मिल जाती हैं। फ्रंट टू बैक रेशियो है। अच्छा, ये VCO का चार्ट है। यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास वोल्टेज की कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है। ये इसकी V ट्यून फ्रीक्वेंसीज है। ये चार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी चार्ट से हम लोग 2.2 से 2.8 गीगाहर्ट्ज तक की, यानी अगर मेरे पास 16 वोल्ट्स में सेट करता हूँ, वो मेरे पास रेजोनेटर है, उससे टैप से स्विच है उससे, तो मेरे पास 2.8 गीगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। इसके बाद आ जाते हैं जी अरेंजिंग द ट्रेनर एंड परफॉर्मिंग द फंक्शनल चेक्स, या हम लोग सीधा सीधा एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। हम इसको इस तरह सेट कर लेंगे, ठीक है। सेटिंग के बाद हम लोगों को एक एंड पे हम लोगों को, यानी ये देखें, रेक्टेंगुलर पैच एंटीना इंस्टॉल करना है, दूसरे एंड पे हम लोगों को फोल्डेड डायपोल एंटीना करना है। नाउ स्विचिंग ऑन रिसीविंग यूनिट ये आ रहा है, ठीक है। वी कैन इंस्टॉल
एनी एंटेना ऑन ट्रांसमीटर दैट रिक्वायर्स टू बी एग्जामिन्ड। तो जिस एंटेना का आप एग्जामिनेशन कर रहे हो या जिसका आपको रेडिएशन पैटर्न देखना है उसको आपको ट्रांसमीटर एंड पे करना है। right now we will install a folded antenna or folded dipole antenna। ठीक है, now connect the folded antenna to RF out। ये हम करते हैं install rectangular patch antenna on the receiving unit at 0 degree that will be in the direction of the transmitter antenna। तो ये सारे काम हम करते हैं। उसके बाद हम वैल्यूज से सेट करेंगे मैक्सिमम वैल्यूज रिसीव करने की और बाकी चीजें देखते हैं। तो अब फिजिकली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे एंटेना रिसीवर यूनिट से। ठीक है, तो ये मेरे पास रिसीवर सेक्शन है, ये ट्रांसमीटर इंटरफेस है, ये एक डबल यूएसबी केबल है जो ट्रांसमीटर इंटरफेस से रिसीवर इंटरफेस तक जा रही है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख लो ये रिसीवर का ऑन ऑफ स्विच है। ये मेरे पास क्योंकि डेटा जो माइक्रो कंट्रोलर कैलकुलेट करके डेटा आपस में इंटरफेस कर रहा है वो है। ये रिसीव्ड पावर जो मुझे रिसीव हो रही है वो आ रही है। ये मेरे पास मॉड्यूल सिलेक्टर है, मोड सिलेक्टर है कि मुझे RSSI चाहिए या मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, और ये जो डेटा का अगर मुझे देखना है आउटपुट डेटा देखना है ऑसिलोस्कोप के लिए तो मैं ऑसिलोस्कोप की पिन यहाँ कनेक्ट करूंगा और उस ऑसिलोस्कोप की ग्राउंड पिन मैं यहाँ से कनेक्ट करूंगा। तो मैं ऑसिलोस्कोप के ऊपर भी मॉड्यूलेटेड डेटा जो कि 1 किलोहर्ट्ज का डेटा आएगा वो भी मैं ऑसिलोस्कोप के ऊपर देख सकता हूँ। इसके बाद ये मेरे पास RF इन आ रही है। ठीक है, ये पूरी आपके पास वही एम्पलीफायर्स हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में पढ़ा हुआ है कि आपके पास क्या जो रिसीविंग सेक्शन होता है उसके ऊपर आपके पास पहले लो नॉइस एम्पलीफायर, फिर पावर एम्पलीफायर, फिर स्प्लिटर, पावर स्प्लिटर और एम्पलीफायर, वो सारी ट्रेन ये चीजें आती हैं। ठीक है, उसके बाद RF इन, यहाँ पे मैं रिसीविंग एंटेना की इनपुट आ रही है, जो सिग्नल रिसीव होंगे वो यहाँ से होंगे और ये मैं कोएक्सिस केबल के थ्रू करूंगा। ये इसकी मेरे पास स्पेक्स नजर आ रही है। ठीक है, इनपुट है जी मेरे पास 50 मेगाहर्ट्ज से 3.5 मेगाहर्ट्ज तक के सिग्नल को मैं इस पे रिसीव कर सकता हूँ। मेरे पास 5 dB मैक्सिमम पावर है। पावर रेंज, इनपुट पावर रेंज है। पावर रेंज वैसे अगर देखें तो -45 dBm से -5 dBm तक आती है। डिटेक्टर जो है पावर का वो 3 मिली वोल्ट से 1.34 वोल्ट DC का है। तो अब मैं इस पे कनेक्ट करता हूँ। ये रिसीविंग एंटेना का रॉड मैंने यहाँ लगा के इसको मैंने यहाँ L की से टाइट करके इसको हम टाइट कर लेते हैं। उसके बाद इसकी ये मेरे पास ब्रैकेट है, इसके ऊपर मैंने रिसीविंग एंटेना लगाना है। ठीक है, तो ये अब हम लगाते हैं। ये मेरे पास रेक्टेंगुलर पैच एंटेना है। ठीक है, लिखा हुआ ऊपर रेक्टेंगुलर पैच एंटेना। तो इस रेक्टेंगुलर पैच एंटेना को इस ब्रैकेट के ऊपर मैंने लगाना है। ठीक है, तो इसके ये 4 होल्स जो हैं ये इस तरह से इसके ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, ये नट है और ये ब्रैकेट है। ठीक है, ये बनी हुई है, ब्रैकेट बनी हुई है, इसके ऊपर ये इस तरह से प्लेस हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसको मैं टाइट कर लूँगा। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि ये मैंने इधर 2 नट लगा के इस स्पेस को होल्ड करवा दिया है। ठीक है, और ये मेरे पास अब रेक्टेंगुलर पैच एंटेना आ रहा है। इस एंटेना को हम लोगों ने अब ये रॉड के ऊपर लगा दिया और ये रॉड ऑलमोस्ट 0 डिग्रीज पे ही है जो ट्रांसमीटर को फेस कर रहा है। और बाकी रिसीविंग एंटेना पे आप देख रहे हैं मैंने और सिर्फ इंटरफेस केबल लगाई है, बाकी और केबल्स अभी हम लगाते हैं। अब मैंने ये एक कोएक्स केबल है। ठीक है, ये मैं इसका एक एंड इस तरह से इस पे कनेक्ट कर रहा हूँ रिसीविंग RF इन पे। ठीक है, और ये दूसरा एंड है, दूसरा एंड मेरे पास चला जाएगा। ये जो हम लोगों ने एंटेना लगाया था, मैं ब्रैकेट भी मैंने टाइट नहीं की थी, इसके ये रिसीविंग एंड पे। ठीक है, यहाँ पे ये इसका रिसीविंग एंड आ रहा है। तो ये मैंने इसको ये मेरे पास रिसीविंग एंड इसका यहाँ। तो ये अब आप देख रहे हो ये इस पे टाइट हो गया और ये सही क्योंकि L की से इसको मैंने टाइट कर दिया, अब ये हिलेगा नहीं। ये 0 डिग्री के ऊपर मैंने ट्रांसमीटर रिसीवर के हिसाब से
0 डिग्री के हिसाब से मैंने सेट कर दिया। अब ये तो हो गया हमारे पास रिसीविंग यूनिट। अभी हम इसको ऑन नहीं करते हैं, अब हम जाते हैं ट्रांसमीटर की साइड पे। ठीक है, ये मेरे पास ट्रांसमीटर एंड आ रहा है। ट्रांसमीटर एंड पे आप देख सकते हैं कि ठीक है, सबसे पहले तो मेरे पास यहाँ पे ये टोन सिलेक्टर आ रहा है। इसको अच्छा, ये 1 किलोहर्ट्ज टोन सिलेक्टर है। ठीक है, ये मेरे पास वही VCO है जिसपे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे मैं जो वोल्टेज सेट करूँगा इसके हिसाब से मुझे यहाँ पे वोल्टेज मिलेंगे। अगर मैं इसको ऑन करूँ, ठीक है, इनके ऑन स्विच बैक पे है, ये इसका ऑन का स्विच है ट्रांसमीटर एंड का, और इसी तरह ये रिसीविंग एंड का स्विच होगा, इधर ये लगा हुआ है। ठीक है, ये स्विच ऑन हो गया है। अब आप देख रहे हैं कि इस पर भी रीडिंग्स आ रही हैं, हालांकि अभी रिसीवर मैंने ऑफ रखा हुआ है, यहाँ पे कुछ रिसीव नहीं हो रहा। ये मेरे पास ट्रांसमीटर एंड आ रहा है। ठीक है, VCO को अभी मैंने ऑफ पे रखा हुआ है। ठीक है, VCO पावर अभी आगे ट्रांसमिट नहीं हो रही है, मगर यहाँ से सिलेक्टर स्विच से आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर मैं इसको यानी अभी तो ये फिक्स हुआ हुआ है 2.4 पे, इसको मैं ऊपर करता हूँ तो अब यहाँ पे मेरे पास ये जो मुख्तलिफ वोल्टेजेस लेवल हैं इसके हिसाब से मेरे पास आएगी, पावर आएगी। इसको मैं अगर 16 तक ले जाऊँगा तो मेरे पास इसका मतलब होगा कि 2.8 है और 7, और इन रीडिंग्स के हिसाब से जो चार्ट हमें गिवन है, जो मैंने आपको दिखाया था मैनुअल में चार्ट है, ये वाला चार्ट। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ वोल्टेजेस के हिसाब से मेरे पास मुख्तलिफ करंट है। जैसा 4.6 पे मेरे पास 2.237 आ रही है। 2.24 अगर मुझे करना है तो 2.26 है, 2.25 है, 2.248 आ रहा है और 2.248 है। तो 4.7 वोल्ट के ऊपर मुझे 2.248 मिलेगी फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं इसको 4.7 पे ले जाऊंगा, ठीक है, ये 4.7 ये 4.70, ये 4.6, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अभी मुझे 2.24 की फ्रीक्वेंसी मिल रही है। अच्छा, अब इसमें मेरे पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ये कि मैं V-ट्यून से सेट करूँ, दूसरा मैं इसको 2.4 पे फिक्स कर दूँ। अगर मैं इसको नीचे प्रेस करता हूँ तो ये 2.4 पे अब फिक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जो मर्जी चेंज करता रहूं, मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है वो 2.4 की है। अब वो VCO इसको नहीं देख रहा, वोल्टेज से नहीं ले रहा, उसने फिक्स 2.4 से फिक्स कर दिया। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे टोन का डेटा भी हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। 1 किलोहर्ट्ज टोन डेटा जनरेटर है, इसको हम ऑसिलोस्कोप से मॉड्यूलेटेड डेटा को देख भी सकते हैं। अगर हमें सिग्नल नहीं देखना, सिर्फ अगर डेटा ट्रांसफर करना है, तो हम वो टोन का डेटा अगर हमें ट्रांसफर करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, ये टोन की आउटपुट है और यहाँ पे आप ये देख रहे हैं टोन की इनपुट है। जब हम टोन का डेटा ट्रांसफर करेंगे तो VCO का काम हमारे पास खत्म हो जाएगा। फिर हम डायरेक्ट यहाँ से फिक्स या ये नहीं होगा, फिर हमारे पास जो RF स्विच से डेटा आ रहा होगा वो VCO के थ्रू, RF स्विच से जो डेटा आ रहा होगा वो RF आउट हो रहा होगा। उसके बाद ये VCO का काम यहाँ से खत्म हो जाता है, तो उसमें हम VCO को ऑफ रखते हैं। फिर मेरे पास ये फॉरवर्ड और पावर वोल्ट मीटर है। ठीक है, फॉरवर्ड पावर क्या है, रिवर्स पावर क्या है, हमें यहाँ से ये पता चलती है। ये RF आउट ये एंटीना के साथ कनेक्ट होगी, ये मॉड्यूलेशन CPU ADCs है। ठीक है, जो आपको यहाँ पे वोल्ट मीटर कन्वर्ट करके दे रहे हैं। उसके बाद ये मेरे पास ऑटो और मैनुअल स्विच है। ये स्विच का जो कंट्रोल है ये मेरे पास इस रॉड का ऊपर जो ट्रांसमिशन रॉड है इसका स्विच का कंट्रोल है। अभी ये ऑटो पे हुआ हुआ है, इसको मैं मैनुअल पे सेट करता हूँ। ठीक है, मैनुअल पे सेट करता हूँ तो आप देख रहे हैं अभी ये मेरे पास 0 डिग्रीज पे आ रहा है। ठीक है, जैसे ही इस स्विच को मैं मूव करूँगा, मेरे पास आप इस सुई को मूव होता हुआ देख रहे हो कि ये मूव होने लग गया। ठीक है, ये रॉड मूव कर रहा है। तो ये मुख्तलिफ डिग्रीज के ऊपर, अगर मुझे किसी एक स्पेसिफिक डिग्री के ऊपर, जिस तरह इस वक्त ये तकरीबन 22 डिग्रीज या 23 डिग्रीज के ऊपर है, तो ये 0 के हिसाब से 23 डिग्रीज के ऊपर अगर मुझे कोई लेवल देखना है तो मैं देख सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद ये काउंटर क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज स्विचेस है और ये होम का बटन है। जैसे ही मैं होम का बटन प्रेस करूंगा तो ये मेरे पास वापस 0 डिग्रीज पे आ जाएगा। अगर मुझे सिस्टम से परफॉर्म करना है
रेडिएशन पैटर्न लेना है कंप्यूटर के ऊपर तो मैं इसको ऑटो पे ही रखूंगा। अगर मुझे मैनुअली वोल्ट मीटर और रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ के ऊपर देखते हुए मैप बनाना है तो मैं इसको मैनुअल पे करूंगा। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया इसका। अब हम एंटेना को कनेक्ट करेंगे। एंटेना को कनेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे RF आउट के ऊपर मैंने ये कोएक्स कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये मैंने RF आउट के ऊपर एक कोएक्स कनेक्ट किया और दूसरा मैं फोल्डेड डायपोल एंटेना के ऊपर कनेक्ट करूंगा जो कि मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है, ये मेरे पास डायपोल एंटेना है। ठीक है, फोल्डेड नहीं है डायपोल एंटेना का मैं अगर टेस्ट कर रहा हूँ, मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे डायपोल एंटेना अटैच करना है। तो डायपोल एंटेना मैंने यहाँ पे अगेन मैं ये ब्रैकेट निकाल लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये ब्रैकेट इसके ऊपर प्लेस करने के बाद मैं इसको नट से टाइट कर दूंगा ताकि ये इसके ऊपर होल्ड करे, हिले। जो मेरा जब रोटेशन परफॉर्म हो, जब मेरा टेस्ट परफॉर्म हो रहा हो तो इसके अंदर वाइब्रेशन से इसको रीडिंग्स इधर उधर ना हो, इस वजह से हम इसको टाइट कर लेते हैं। ये इसके ऊपर अब एग्जैक्ट टाइट हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने इसको पहले हम लगा लें, फिर मैं ये जो मेरे पास कोएक्स का कनेक्टर है आउटपुट का, ये वाला RF आउट से जो आ रहा था, तारों का आपने ख्याल करना है कि सीधी हो। तारों में अगर बेंड होगा तो वो क्योंकि ये रोटेट होगा फिर ये रोटेशन रॉड के साथ प्रॉब्लम करेगा। ये इसको हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। अब मैं इसको रॉड को ब्रैकेट को रॉड के ऊपर लगाता हूँ और इसको यहाँ से इस नट से टाइट कर लेता हूँ ताकि इसमें किसी तरह की वाइब्रेशन या वो ना हो। तो ये भी हमारे पास 0 पे सेट है। ठीक है, अब मैं VCO को ऑन करता हूँ। अब VCO को मैंने ऑन किया तो आप देखें ये फॉरवर्ड पावर आ रही है मेरे पास इस एंटेना के लिए और ये रिवर्स पावर आ रही है, यानी 1.334 रिवर्स है, 1.330 फॉरवर्ड है। अब हम आते हैं रिसीविंग साइड पे। ठीक है, रिसीविंग साइड अभी मैंने ऑन नहीं की थी। ठीक है, रिसीवर जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो आप देख रहे हो मेरे पास RSSI या रिसीव्ड सिग्नल इंटेंसिटी जिसको हम कहते हैं ये आ रही है। इस वक्त ये 0.317 या 0.318 वोल्ट आ रहा है, ये रिसीव पावर है। अगर मैं इसको ऑफ करता हूँ तो मेरे पास पावर कुछ भी नहीं आती है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास जो रिसेप्शन हो रही है सिग्नल्स की वो ट्रांसमीटर टू रिसीवर ठीक हो रही है। इसके बाद हम अब ये सब करने के बाद मैंने ये USB इंटरफेस से ये जो मेरे पास PC इंटरफेस थी ट्रांसमीटर एंड पे, इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है सिस्टम इंटरफेस पे और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ है। उसका प्रोसीजर आपको मैनुअल में मिल जाएगा और सॉफ्टवेयर भी आपको मिल जाएगा। ये सॉफ्टवेयर को मैंने डबल क्लिक किया है, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं। ठीक है, ये ग्रीन यहाँ पे आपको ट्रेनिंग सिस्टम पे कनेक्टेड लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब है कि ये कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को रीसेट पे क्लिक करना है। ठीक है, और स्टार्ट कैप्चरिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही मैं स्टार्ट कैप्चरिंग पे क्लिक करूंगा मुझसे ये पूछेगा कि मेरे पास फॉरवर्ड पावर और रिसीव पावर की वैल्यूज लिखनी है। तो वो आपको याद होगा 1.330। ठीक है, फॉरवर्ड पावर है 1.330 और रिवर्स पावर अगर आप देखें तो 1.333। ठीक है, तो रिवर्स पावर में यहाँ पे 1.333 एंटर करके सबमिट कर दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने ये सबमिट किया अब ये रिसीविंग डेटा प्लीज वेट लिखा हुआ आ रहा है और अगर मैं ट्रांसमीटर एंड पे आऊँगा तो ये मेरे पास मूव करना शुरू हो गया। ठीक है, अब ये 1 डिग्री इसकी रेजोल्यूशन है। 1 डिग्री रेजोल्यूशन मीन्स कि ये एक डिग्री को मूव करता रहेगा। ठीक है, आप देख रहे हैं, अगर आप देखें ये ठीक है, हर एक डिग्री के ऊपर ये वैल्यू लेगा और वैल्यू ट्रांसमिट कर रहा है, सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। और ये यहाँ पे मेरे पास पैच एंटेना जो कि डायरेक्शनल एंटेना है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये जिस डायरेक्शन इसको सिग्नल रिसीव होगा उस हिसाब से ये इसको भेज रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं आप रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ भी हर एंगल के साथ साथ चेंज हो रही है।
ठीक है, जो 0.33 समथिंग थी अब वो 2.5 हो रही है, और जो रिसीव सिग्नल होंगे उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे रेडिएशन पैटर्न मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, फुल 360 रोटेट होने में, तब तक हम वेट करते हैं। हाँ, ये इस वक्त तकरीबन 60 डिग्रीज पे पहुंच के आहिस्ता आहिस्ता ये जब फुल होगा तो हम देखते हैं। साथ ही साथ अगर मैं रिसीव सिग्नल लेवल पे देखूं तो यहाँ पे मेरे पास रीडिंग अब 2.58 2.59 चेंज हो रही है। इन रीडिंग से चेंज होने से भी मुझे पता चल रहा है कि मेरे पास रिसीव और ट्रांसमिट और रिसीव में चेंजेस आ रही हैं, ठीक है। सिग्नल उसके लेवल उसकी रोटेशन से मेरे पास फर्क पड़ रहा है। अच्छा, एक जो मैनुअल के अंदर स्पेसिफिकेशन के अंदर गिवन है, ट्रांसमीटर और रिसीवर एंटीना के दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस 1 मीटर का होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा का होगा तो ये काम नहीं करेंगे। लैब इक्विपमेंट जब भी बनता है तो इस चीज़ का देखा जाता है, ये बहुत बड़े डिस्टेंस के ऊपर ट्रांसमिशन रिसेप्शन के लिए नहीं बना हुआ, ये लैब के अंदर टेस्ट करने के लिए है। तो 1 मीटर का डिस्टेंस आपने इसका रखना है। ये 1 मीटर का डिस्टेंस आप रखोगे तो आपका बेहतर परफॉर्म होगा। दूसरा ये कि जिस एनवायरनमेंट में अभी हम ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे हमारे पास अगेन वाईफाई के 2.4 गीगाहर्ट्ज़ के सिग्नल भी, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ वाईफाई के सिग्नल भी इसको इंटरप्ट कर रहे हैं, और साथ ही साथ ब्लूटूथ और ऐसी हम एक कम्युनिकेशन लैब में है कि यहाँ पे हमारे पास 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की मल्टीपल फ्रिक्वेंसीज आपके पास आ रही हैं, तो वो भी इस पे रिजल्ट पे इफेक्ट करेंगी। अगर आपको बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट रिजल्ट परफॉर्म करने हैं तो आपको साइड की जो इंटरप्टेड सिग्नल्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि आप उन सिग्नल्स को बंद करके फिर आप इस पे परफॉर्म करेंगे तो आपके पास रिजल्ट बहुत ही एक्यूरेट आएंगे। यानी आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में अगर आप रिजल्ट टेस्ट परफॉर्म करोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। अच्छा, अब हम देख रहे हैं कि अब ये वापस 0 पे आके रुक गया, ठीक है। इट मीन्स कि अब इसका जो फुल रोटेशन थी 0 to 360 डिग्री वो कंप्लीट हो गई है। दोनों एंटेनाज आपस में देख रहे हैं बिल्कुल आमने सामने, इस वक्त 0 डिग्री के ऊपर है। तो 0 डिग्री के ऊपर अगेन हमारे पास 0.34 तक हमारे पास वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो जैसे ये रोटेट हो रहा था तो आप देख रहे थे 0.2 पे भी गए थे। अब इसका रेडिएशन पैटर्न देखते हैं सिस्टम के ऊपर, ठीक है। तो अब अगर सॉफ्टवेयर के ऊपर आए तो ये मेरे पास इसका इसने रेडिएशन पैटर्न मुझे कुछ इस तरह का दिया। मुझे जो ये मेरे पास बैक लोब है, ये मेरे पास फ्रंट लोब, आपके पास डायपोल के जो 2 लोब्स बन रहे हैं वो ये बन रहे हैं, ठीक है। और ये जो मेरे पास पीक्स आ रही हैं वाईफाई के जो मुख्तलिफ सिग्नल इंटरप्ट कर रहे हैं उस वजह से ये रिसीव पावर यहाँ पे बहुत ज़्यादा भी की हुई है, मगर ये मेरे पास आ रही है। अब इसको मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अंदर मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसको सेव कर सकता हूँ। राइट क्लिक करें तो ये राइट क्लिक करें तो सेव इमेज या प्रिंट चार्ट। अगर आप प्रिंट चार्ट करते हैं तो ये मेरे पास PDF प्रिंटर इंस्टॉल हुआ है, तो ये PDF का नाम मैं डेस्कटॉप पे ही इसको डॉक्यूमेंट की जगह यहाँ से मैं इसे डेस्कटॉप के ऊपर ही डॉक्यूमेंट के नाम से सेव कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक PDF डॉक्यूमेंट सेव हो गया। इसको अगर मैं ओपन करूँ ठीक है, ये मेरे पास PDF के अंदर ये पिक्चर सेव हो गई है। इसको मैं एज एन इमेज भी सेव कर सकता हूँ, ठीक है। उसके लिए अगेन इसको बंद करते हैं, सॉफ्टवेयर के ऊपर आएंगे, राइट क्लिक, सेव इमेज, इमेज फाइल में यहाँ पे 2 के नाम से सेव कर लेता हूँ। ऑलरेडी 1 सेव्ड है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक इमेज फाइल के तौर पे भी आ गया। इसको हम जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ लेवल्स पे जो मेरे पास रिसीव सिग्नल स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से जो रेडिएशन पैटर्न मेजर्ड हुआ है। अभी जो एनवायरनमेंट है वो हमारे पास क्योंकि ऐसी आइसोलेटेड एनवायरनमेंट नहीं है, इसमें इंटरप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा यहाँ अगर मैं ट्रेनर पे जाऊँ
तो मैं ये डेटा सेव डेटा है CSV, जो मेरे पास ये जो डेटा आया है वो मैं इसको एज अ CSV भी सेव कर सकता हूँ, ठीक है। बाद में मैं इसको एज अ CSV भी व्यू कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम रेडिएशन पैटर्न मेजर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैक्सिमम गेन आप देख रहे हो, मैक्सिमम गेन हाफ एंगल हाफ पावर आ रही है, बीम विड्थ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इसकी वजह से मेरे पास बीम विड्थ जो है वो प्रॉपर सही नहीं बन सक रही है। अगर अच्छी आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में टेस्ट होता तो ये आता। फ्रंट पावर और रिवर्स पावर जो रिसीव हो रही है वही, तो फ्रंट पावर रिवर्स पावर से आप VSWR वगैरह सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके फॉर्मूले आपको मैनुअल में मिल जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम आए तो अभी मैंने इसको 2.4 पे फिक्स किया हुआ था। अगर मैं इसको VCO के हिसाब से जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे यहाँ रिसीव्ड सिग्नल लेवल पे देखना होगा कि मैक्सिमम सिग्नल स्ट्रेंथ कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। अब आप देख रहे हैं अब ये कम होने लग गई है, ठीक है। हालांकि मैं नॉब आगे कर रहा था, मेरे पास वोल्टेज 5.5 पे मेरे पास रीडिंग्स कम होने लग गई हैं। मैं वापस नॉब को घुमाता हूँ, 3.54 56 यानी कि 3.5.356 जो है ये मेरे पास ऑलमोस्ट, यानी कि इधर अब ये कम होने शुरू हो रही है, ठीक है, यानी कि 0.3585758 यानी ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ ये रिसीव कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे वोल्टेजेस लेवल देख लें 5.31 आ रहे हैं। अब 5.31 के अगेंस्ट कौन सी फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है वो हमें जो चार्ट है यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। 5.31 पे मेरे पास 2.271 आ रहा है, ठीक है। 5.4 पे मेरे पास 2.276, तो अप्रोक्सीमेटली 2.27 की फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये बेस्ट मैच हुए होंगे। अब मुझे इसको रीसेट करना है। मैंने पहले यहाँ से इसको मैनुअल पे किया, होम पे गया, तो अब ये दोबारा रोटेट होके वापस जो है आपके पास काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट होके वापस फुल आ रहा है। और यहाँ पे रीडिंग्स आप देख रहे हैं रिसीव्ड सिग्नल पे, जैसे जैसे उसकी रोटेशन हो रही है वो चेंज हो रही है, ठीक है। इस वक्त आप देखें एंटेना बिल्कुल उसके आउट ऑफ फेज है, तो मेरे पास मिनिमम रीडिंग्स मिल रही हैं। अब दोबारा उसके फेस टू फेस होगा, फेसेस दोनों के आमने सामने होंगी, तो मेरे पास मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिल रही होगी। ठीक है जी, ये होम पे आ गया। अब यहाँ पे मेरे पास 3.38 3.37 ये रीडिंग्स मिल रही हैं, बल्कि देख रहे हैं 0.4 पे भी जा रहा है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। तो इस तरह अब ये वापस अपनी उसमें सेटिंग में आ गया, ठीक है। अब दोबारा अगर मुझे टेस्ट लेना है तो मैं इसको रीसेट क्लियर करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, मगर मैं बेहतर है कि दोबारा सॉफ्टवेयर को ओपन कर लूँ ताकि प्रीवियस रिकॉर्ड उससे सारा हट जाए, ठीक है। ये एंटेना कनेक्टेड आ गया, ठीक है, ये एंटेना कनेक्टेड सिस्टम आ गया। इसको रीसेट करके मैं अगेन स्टार्ट कैप्चरिंग शुरू करता हूँ। फॉरवर्ड और रिवर्स वोल्ट अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉरवर्ड पावर 1.27 आ रही है और 1.26 रिवर्स आ रही है। तो फॉरवर्ड 1.27 आ रही है और रिवर्स जो है वो 1.26 आ रही है, ठीक है। दोबारा कंफर्म कर लेते हैं, हाँ जी 1.26 आ रही है। तो ये मैं इस पे रीडिंग्स एंटर करके सबमिट कर रहा हूँ और फिर मैं स्टार्ट कैप्चरिंग पे क्लिक करूँगा। अब अगेन ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा अभी, बॉड रेट यहाँ पे मेरे पास ग्रीन नहीं हुआ, रेडी है। कोई कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हुआ होगा, मैं दोबारा इसको देखता हूँ। प्रॉब्लम ये हुई थी कि यहाँ पे मैंने जो स्विच था वो मैनुअल पे किया हुआ था, तब वो कैप्चर नहीं कर रहा था। जैसे इसको स्विच को ऑटो पे रखेंगे, जब सिस्टम जनरेट करेंगे अब ये अगेन घूमना शुरू हो गया। तो इस तरह जब ये फुल 360 घूमेगा तो हमारे पास यहाँ पे रेडिएशन पैटर्न आ जाएगा। पहले हमने 2.4 फिक्स पे किया है, अब हम 2.27 की
फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हैं, ठीक है। वो मेरे पास फॉरवर्ड पावर उसी हिसाब से आ रही है, यहाँ पे मेरे पास वोल्टेजेस लेवल चेंज हो रहे हैं जैसे जैसे वो रोटेट कर रहा है। तो ये आज की हमारी लैब थी जिसपे हम लोगों ने एंटेना पे एंटेना ट्रेनर के ऊपर हम लोगों ने एक एंटेना का रेडिएशन टेस्ट कैसे मेजर कर सकते हैं वो देखा है। इसके अलावा जो इस इक्विपमेंट के साथ हमारे पास एंटेनाज अवेलेबल हैं वो आप देख सकते हैं। ये लॉग पीरियोडिक है, बो टाई है, पैच अरे पैच है, ठीक है, रेक्टेंगुलर पैच अरे बनी हुई है, ये स्लॉटेड एंटेना है, ये सर्कुलर पैच स्टार है, वो ये आपके पास अगेन यागी आ रहे हैं, ठीक है, यागी एंटीना है। ये आपके पास λ/2 फेज अरे आ रही है यागी की, ये कंबाइंड कोलिनियर अरे आ रही है। इसके बाद आपके पास ये नीचे आप देख रहे हैं ये स्केयर्ड लूप एंटेना है, मगर ये माइक्रोस्ट्रिप नहीं है, ये इस तरह का है आपके पास स्केयर बना हुआ है। इसको अगर हम निकाल के देखें तो ये आपके पास अब आप देख रहे हैं ये स्केयर्ड लूप एंटीना है। ये मेरे पास 5 λ/4 का डायपोल एंटीना है और ये मेरे पास सर्कुलर पैच एंटीना है। ये अब आप देख रहे हैं कि सर्कुलर पैच एंटीना है और वो भी सर्कुलर पैच एंटीना है, मगर वो माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटीना है और ये सर्कुलर लूप एंटीना है, सॉरी पैच नहीं है, सर्कुलर लूप एंटीना है। तो इसके अलावा मेरे पास यहाँ लॉग पीरियोडिक एंटेना है, ये डायपोल्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है, 3 λ/2 फेज अरे आ रहा है, ये मेरे पास 3 λ/2 डायपोल एंटेना है। उनके अलावा हमारे पास फिर ये बो टाई एंटेना है, ये मोनोपोल एंटेना है, फ्रैक्टल एंटेना है, टैपर्ड मोनोपोल एंटेना है, फोल्डेड डायपोल एंटेना। फोल्डेड डायपोल एंटेना कुछ इस तरह का आपको मिलेगा, ठीक है। उसके बाद ये जिपर इन एंटेना आपको नज़र आ रहा है। फिर ये मेरे पास जो है यागी एंटेनास पड़े हुए हैं, ठीक है, यागी उडा एंटेनास पड़े हुए हैं। तो ये सारे एंटेनास हम रेडिएशन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, इनकी SWR VSWR कैलकुलेट कर सकते हैं, फॉरवर्ड रिवर्स पावर, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। इस इक्विपमेंट को यूज़ करते हुए हम मल्टीपल एंटेनास, जस्ट हमें ट्रांसमिटिंग एंड के ऊपर यहाँ ब्रैकेट के ऊपर एंटेना चेंज करना है, बाकी प्रोसीजर आपका यही रहता है। बाकी प्रोसीजर एंटेना टेस्ट का यही है। आपने अगर VCO से फ्रीक्वेंसी ट्यून करके करना है तो आपने उस फ्रीक्वेंसी को देखना है जिस पे आपको पास मैक्सिमम सिग्नल स्ट्रेंथ रिसीव हो रही होगी, ठीक है। और अगर आपने फिक्स 2.4 पे करना है तो ये आपके पास VCO का डेट स्विच है, इसको आप नीचे करेंगे तो ये 2.4 पे फिक्स हो जाएगा। ये मेरे पास रिसीवर मॉड्यूल है, ठीक है। इस वक्त हम RSSI डेटा देख रहे हैं, डेटा को नहीं देख रहे हैं क्योंकि डेटा हमारे पास 0-1 की फॉर्म में आएगा, स्केयर वेव है, तो वो जब मैं टोन इन का डेटा दूंगा तब आएगा। तो एंटेना टेस्ट हम लोग इस तरह से परफॉर्म करते हैं। आज की लैब यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। आज की लैब हम यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। आज हमने देखा कि कैसे हम OFTT 1599 ट्रेनर को यूज करके कैसे हम रेडिएशन टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे जो हमारे पास ये इस वक्त हम लोग इलेक्ट्रिक प्लेन में, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली प्लेस करूंगा इस तरह से तो मेरे पास मैग्नेटिक प्लेन में आ जाएगा। रेडिएशन टेस्ट हमने परफॉर्म किए, हमने उस चीज़ देखा, हमारे पास फॉरवर्ड पावर रिवर्स पावर वहाँ पे लिखी आ जाती है, वहाँ से हम मैक्सिमम गेन, डायरेक्टिविटी, बीम विड्थ, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की लैब के लिए इतना ही है। इस लैब से गो थ्रू कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है इस लैब से रिलेटेड तो वो फिर हम क्वेश्चन आंसर के सेशन में क्लियर कर लेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।